hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 4 of your class 4 EVS, that is plants life part of a plant. प्लांट्स की लाइफ होती है, ऐसे उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं. लाइक यू ऑल हैव अ लाइफ, आपके भी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं. लाइक प्लांट्स आल्सो हैव द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स सेम. सो plants can grow on the mountains, desert, plainlands, under the water, anywhere the plant can grow with the help of their needs. So there are different body parts like flower, stem, roots, and plants have different body parts like flower, roots, stem, and fruit. So let's read the chapter. Plants are all around us. As I told you, plants हमारे चारों तरफ हैं. Plants grow on mountains, in deserts, and even under the sea. Plants कहाँ grow करते हैं? Mountains पे भी grow कर सकते हैं, sea में भी, and desert में भी, on under the sea. In order to survive in different places, plants grow in different ways. different places में survive करने के लिए plants different ways में grow करते हैं. Like we have learned that the plants are mostly grown from the seeds. As you know, plants कहाँ से grow करते हैं? Seeds से grow करते हैं. The seeds are protected inside the fruit. वो seed आपने देखा होगा, आपने कोई fruit खाते हो उसके अंदर ज़्यादातर seeds होती है ना, तो वो seed किससे protected होती है? Fruit से protected होती है. When the seed gets water, warmth, and air, and the tiny particle inside the seed grows and comes out of it. जो अगर उस सीड को वार्मथ मिले, प्रॉपर एयर मिले, ऑक्सीजन मिले, तो उसकी जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वो ग्रो करते हैं और कम्स आउट ऑफ द सीड. Let us try growing some seed. In a home, you can try growing a seed. You can plant a seed inside a pot. After 1 to 2 weeks, the seedling will happen. The stem will come out of that seed. So now let's label this diagram. What is this called? इसको क्या कहते हैं हम? इस पार्ट को क्या कहते हैं हम? This is the flower. You can write the full spelling in your books. Flower. These are the leaf. This is also the leaf. This is the fruit. These are the stem. These are the roots. So, a new plant which grows from a seed is called seedling. जो एक new plant grow करता है seed से, उस process को क्या कहते हैं? हम seedling कहते हैं. A seedling has root, stem, and leaves. Seedlings में क्या क्या होता है? Root भी होती है, stem भी होता है, leaves भी होती है. It can be transferred to a garden. जब वो grow कर देता है उसे हम garden में transfer कर सकते हैं from the pot. It grows into a big tree. It is a mango seedling, or if it is a mango seedling or into a small plant, it is bean seedling. और आपने देखा होगा, आपकी मैंगो की भी आपके पास होती है, सीड होती है, तो उसको भी आप प्लांट करोगे तो वो भी धीरे धीरे बड़ी होगी. जब उसमें से प्लांट आने लगा, यू कैन पुट इट इनटू अ ग्राउंड. आप अपने ग्राउंड में ग्रो कर सकते हो इन अ गार्डन. इट इज अ बीन सीडलिंग. अब वो ग्रो करेगा स्मॉल प्लांट में. अगर वो क्या होगा? स्मॉल बीन सीडलिंग होगा, पार्ट ऑफ अ प्लांट. नाउ लेट्स रीड अबाउट पार्ट ऑफ अ प्लांट के क्या क्या बॉडी प्लांट के पार्ट होते हैं. Here is a picture of a plant. Here you can see a picture of a plant. Can you label the parts? Mark there. Yes, we have already labeled the parts. Mark there. The part of the plant that grows above the ground is called the shoot. जो part of the plant है जो इसके ऊपर होता है, above the ground होता है, इसको क्या कहते हैं? हम shoot कहते हैं. The shoot consists of stem, branches. शूट में क्या क्या होती है? स्टेम होती है, ब्रांचेस होती हैं, लीफ होती है, बर्ड होती है. दिस इज बर्ड. एज यू कैन सी, दिस इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर. दिस इज अ बर्ड. फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. फ्लावर्स भी है, फ्रूट्स भी है. फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम. फ्रूट्स में क्या होती है? अंदर उनके सीड्स होती हैं. द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट. द पार्ट जो प्लांट का पार्ट रूट के उसके ग्राउंड के अंदर ग्रो करता है उसको क्या कहते हैं? हम रूट्स कहते हैं. As you can see in this picture, these are the roots which grows under the ground.
सो लेट अस सी व्हाट ईच पार्ट डज फॉर द प्लांट. अब हम देखेंगे कि ईच पार्ट प्लांट के लिए क्या करता है. लाइक लीफ मेक्स द फूड फॉर द प्लांट and stem carries the food in different part of the plant. Now let's talk about root. Root क्या करता है? The part of the plant which remains under the ground is called root. प्लांट का एक ऐसा पार्ट जो ग्राउंड के अंदर रहता है उसको क्या कहते हैं? हम रूट्स कहते हैं. Now functions of root. Here are some functions of root. Function. Roots क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? First is root fix the plant firmly into the ground. आपने देखा होगा अगर किसी प्लांट की रूट होती है वो अच्छे से अंदर ग्राउंड में चली जाती है तो प्लांट एकदम स्ट्रेट, उसको हेल्प मिलती है स्ट्रेट रहने में, फॉर्मली ग्रो करता है वो. द रूट स्प्रेड आउट इन द सॉइल एंड होल्ड द प्लांट फॉर्मली इन द ग्राउंड. जो रूट्स होती है वो किस में ग्रो स्प्रेड हो जाती है? ग्राउंड के अंदर स्प्रेड हो जाती है, उसे फॉर्मली प्लांट को वहीं टिकाने में हेल्प करती है. परफॉर्म. नाउ रूट सेकेंड इज एब्जॉर्ब. रूट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल. सेकेंड पॉइंट इज द रूट्स जो होती है हमारी वो क्या करती है? प्लांट को उसको सॉइल को वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है. द रूट्स ऑफ अ प्लांट कैरी आउट अनदर फंक्शन फॉर द प्लांट. जो रूट्स होती हैं वो अदर क्या क्या कैरी करती है? अनदर फंक्शन कैरी करती है रूट फॉर द प्लांट. दे प्रोवाइड वाटर एंड मिनरल्स. वो मिनरल्स और वाटर प्रोवाइड करती हैं टू द प्लांट. रूट्स एब्जॉर्ब दीज फ्रॉम द सॉइल एंड पास देम टू द स्टेम. रूट क्या करती है? उसको वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है फ्रॉम द सॉइल, सॉइल में से, मिट्टी में से, और स्टेम्स में पास कर देती है. सो इन ये पिक्चर यू कैन सी मिनरल्स एंड वाटर्स आर सोक्ड बाय द रूट्स और वो धीरे धीरे स्टेम्स में पास हो जाएंगे. जैसे रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. थर्ड, रूट्स बेंड द सॉइल. रूट्स क्या करती है? सॉइल को बेंड कर देती है. लेट्स रीड अबाउट दिस. Soil on which no plants are growing is easily washed away by water or blown away by the air. जो soil होती है वो क्या कहते हैं? मिट्टी को roots क्या होती है? soil को पकड़ के रखती है. क्या जैसे आपने देखा होगा जहाँ पे प्लांट नहीं होता वो easily soil क्या होती है? washed away हो जाती है और वो blown away by with the air. वो जो जैसे हवा चलती है उससे उड़ जाती है. Now fourth, roots store food. Roots क्या करती है? फूड को स्टोर करके रखती हैं. Some roots like carrots, radish, etc. stores food. We eat such roots. आपने देखा होगा कैरेट्स खाते हो आप, क्या करते हो? कैरेट्स, बीटरूट, रेडिश खाते हो तो क्या करती है? वो अंडर द ग्राउंड ग्रो करती है. दैट इज अंडर द ग्राउंड फूड. तो वो क्या करती है? वो फूड को स्टोर करके रखती हैं तो हम उनको वी कैन ईट दैट फ्रूट. नाउ टाइप्स ऑफ फ्रूट. देयर आर टाइप्स ऑफ फ्रूट. Two types of root. There are mainly two types of root, tap root and fibrous root. दो टाइप की रूट्स होती है हमारे पास, टैप रूट्स होती है और fibrous root होती है. फर्स्ट इज टैप रूट. टैप रूट इज अ लॉन्ग थिक रूट अटैच्ड टू द स्टेम. टैप रूट क्या होती है? लॉन्ग थिक रूट होती है, वो स्टेम से अटैच्ड होती है. दिस इज द मेन रूट. This is the main root and mainly thinner root grow out from the main root. क्या होती है? मेन रूट होती है और इसमें से थिनर रूट्स क्या होती है? ग्रो करती हैं मेन रूट में से. प्लांट लाइक बीन, टी, पीपल एक्सेट्रा हैव टैप रूट्स. प्लांट्स होते हैं लाइक बीन हो गया, टी हो गया, पीपल हो गया, जिनमें क्या होती है? टैप रूट्स होती हैं अवेलेबल. नाउ यू इन दिस पिक्चर यू कैन सी दीज आर द टैप रूट्स. दिस इज द मेन रूट. These are the tap roots. Now next page. Fibrous root. फिब्रस रूट कौन कौन सी होती है? इन फिब्रस रूट देयर इज नो मेन रूट. फिब्रस रूट में कोई भी एक मेन रूट नहीं होती. अ ग्रुप ऑफ इक्वल साइज रूट आर अटैच्ड टू द एंड ऑफ द स्टेम. जो ग्रुप होता है इक्वल साइज रूट का वो अटैच्ड होता है स्टेम के एंड में. व्हीट, राइस, ग्रास एक्सेट्रा हैव फिब्रस रूट. जो व्हीट होता है, राइस होता है, ग्रास होता है, उनमें क्या क्या होती है? फिब्रस रूट अवेलेबल होती है. इन दिस पिक्चर यू कैन सी दीज ऑल आर द इक्वल साइज रूट. और ये कहाँ पे होती है? व्हीट में होती है, राइस में होती है, फ्लावर में होती है, ग्रास में होती है. नाउ शूट. व्हाट डू यू मीन बाय द सेकंड पार्ट इज शूट. इसको क्या कहते हैं? शूट क्या होता है? द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट. जो भी पार्ट प्लांट का ग्राउंड के ऊपर ग्रो करता है उसको कहते हैं हम शूट. द शूट कंसिस्ट ऑफ स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बड्स, फ्लावर एंड फ्रूट. शूट में क्या होता है? लीव्स होती है, ब्रांच होती है,
और लीव्स बर्ड जो होती है, स्टेम होती है, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स कंसिस्ट होता है शूट में. नाउ फर्स्ट इज स्टेम. स्टेम तो क्या होती है स्टेम? द मेन पार्ट ऑफ द शूट इज द स्टेम. जो शूट का एक मेन पार्ट होता है वो होती है स्टेम. इट सपोर्ट्स अ प्लांट अबव द ग्राउंड. वो क्या करती है, जो ग्राउंड के ऊपर प्लांट होता है उसको सपोर्ट करती है. द स्टेम ऑफ अ बिग ट्री इज स्ट्रॉन्ग. जो बिग ट्री की स्टेम होती है वो बहुत ज्यादा मजबूत होगी. लाइक यू हैव सीन इन द पीपल ट्री और इन द बैनियन ट्री. थिक भी होती है एंड वुडी होती है. वो क्या होती है, वुडी होती है. उसमें देखा होगा हमने वुड्स होती है. नीम एंड मैंगो ट्रीज हैव सच अ स्टेम. नीम की ट्री में भी होता है, मैंगो ट्रीज में भी ये स्टेम्स होती है जो वुडन स्टेम्स होती हैं. These in this tree you can see a wooden stem. This is the wooden stem. This tree has some stems are thick and soft in banana plant. जो banana plant होता है उसकी कुछ stems क्या होती है, thick होती है और soft होती है. Some stems are weak, soft and green. कुछ होती है weak होती है और soft होती है और बहुत greenery होती है उनमें. They cannot hold up a plant. वो क्या करते हैं, वो प्लांट को ऊपर होल्ड करके नहीं रख सकती. फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट. दीज प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. आपने देखा होगा मनी प्लांट को होता है उसकी किसी सपोर्ट की जरूरत होती है. इट नीड्स अ सपोर्ट ऑफ अ स्टिक और अ वॉल जिसके अराउंड वो ग्रो कर सकता है ऊपर. दे नीड सपोर्ट टू स्काई अप राइट. उनको सपोर्ट चाहिए ऊपर जाने के लिए. द मेन फंक्शन ऑफ अ ग्रीन स्टेम आर. जो ग्रीन स्टेम होती है उसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं? स्टेम सपोर्ट्स द प्लांट अबव द ग्राउंड. जो स्टेम होती है वो प्लांट को सपोर्ट करती है ग्राउंड के ऊपर. इट बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, बड्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स. उसमें क्या क्या होती है, ब्रांचेस होती है, लीव्स होती है, बड्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं. सेकेंड पॉइंट, इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स. वो क्या करती है, वो वाटर और मिनरल्स जो उसके अंदर होते हैं उसको एब्जॉर्ब करके रखती है और स्टेम्स और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में दे के आती है. द स्टेम ऑल्सो कैरीज फूड फ्रॉम द लीव्स टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. एज आई टोल्ड यू, जो स्टेम होती है कलेक्ट करती है फूड को लीव्स से और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है. सम स्टेम्स स्टोर फूड फॉर द प्लांट्स. कुछ स्टेम्स क्या करती है, फूड के प्लांट के फूड को स्टोर करके रखती है. फॉर एग्जाम्पल शुगर केन, पोटैटो, जिंजर एक्सेट्रा. जो ये स्टेम्स होती है ये क्या करती है, फूड को स्टोर कर लेती है जिसको हम खाते भी हैं. Stems like potato and ginger are underground stems. जो पोटैटो और जिंजर होती है वो क्या होती है, अंडरग्राउंड. वो अंडर द ग्राउंड ग्रो करती है. These are the underground stems. We eat these stems. हम क्या करते हैं, स्टेम्स को खाते हैं. Like you can see in this picture, you eat potato, eat ginger. These stems store the food. Now next page. Leaf. What is leaf? Leaf is a part of a plant which makes food through the help of the process is called photosynthesis, which जिसमें सन की हेल्प से वो फूड को प्रिपेयर करते हैं. The flat part of the leaf is called the lamina. जो लीफ का फ्लैट पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, लेमिना कहते हैं. This is called the lamina. The main vein and the side vein can be seen easily on the leaf lamina. जो मेन वेन होती है और जो साइड वेन होती है, this is the main vein and these are the side vein. वो easily क्या शो होती है, लेमिना पे आराम से बहुत ज्यादा शो होती है. Has many tiny pores on the underside called stomata. उसके अंदर बहुत tiny pores होते हैं, उनको क्या कहते हैं, we call them as stomata. This is the important term, stomata. The exchange of gases takes place through the stomata. जो exchange of gases होती हैं, they also need the oxygen to make food. They also need the carbon dioxide to make food. तो oxygen gases का exchange कैसे होता है, वो स्टोमेटा के थ्रू होता है. They release the oxygen and inhales the carbon dioxide. Leaf prepares food for the plant. As I told you, जो leaf होती है वो क्या करती है, फूड को प्रिपेयर करती है. Like your mother prepares the food for you, likely the leaf also prepares the food for a plant. Plant makes their food in the leaves with the process of photosynthesis. जो plant होता है वो अपने leaves में food बनाता है with the help of photosynthesis. The process is called photosynthesis. The leaves use sunlight, water, minerals and carbon dioxide to make food. With chlorophyll, जो leaf होती है उसको क्या क्या चाहिए होता है, carbon dioxide, minerals, water, sunlight and to make food with
क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स. क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है जो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है. The food prepared by the leaves is stored in roots, stems, fruits and seeds. जो food leaves prepare करते हैं वो कहाँ कहाँ store होता है? Leaves में, stems में, fruit में and seeds में. Plants like mint and cabbage store food in the leaves. जो plants होता है, mint हो गई, cabbage हो गई, वो कहाँ पे अपना food store करता है? अपनी leaves के अंदर. We eat these leaves. हम क्या करते हैं? उन leaves को खा लेते हैं. When the leaves make food, they also give out oxygen. जो leaves होती हैं वो food बनाती हैं, तो क्या release करती हैं? They release oxygen. All living things need oxygen to live. Plants breathe too. सब living things को oxygen की need होती है और plants भी breathe करते हैं. They inhale, they breathe carbon dioxide. Flowers and plant. What do you mean by flower and fruit? What do you mean by flower and fruit? Flower of different plants differ in color, size, shape and fragrance. जो फ्लावर होता है डिफरेंट प्लांट का, वो सबका उनका कलर्स भी चेंज होता है, शेप भी चेंज होती है और साइज भी डिफरेंट होता है. जैसे रोज प्लांट कुछ होता है, लोटस फ्लावर कुछ होता है, रोज की शेप कुछ और होती है, लोटस की शेप अलग होती है. द फ्लावर्स मेक अ प्लांट लुक ब्यूटीफुल. फ्लावर क्या बनाते हैं? प्लांट को देखने में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बनाते हैं. First, a tiny bud appears on the stem that grows into a flower. जो होता है टाइनी बड कहाँ पे अपीयर होती है? स्टेम के ऊपर. देखो अपने छोटी सी बड अपीयर होती है, उसमें धीरे धीरे वो फ्लावर बन जाता है. Later the flower is becomes a fruit. जो फ्लावर होता है तो धीरे धीरे फ्रूट बन जाता है. Fruit have seeds in them. फ्रूट में क्या होती है? अंदर सीड्स होती है. Like in watermelon plant you have seen many seeds. When the seeds are fully formed, the fruit ripens. जब सीड्स क्या होती है अच्छे से फॉर्म बन हो जाती है, फ्रूट क्या होता है? पक जाता है. Some fruits like mango and cherry have only one seed. कुछ फ्रूट्स होते हैं, मैंगो हो गई, चेरी हो गई, उनमें एक ही सीड होती है. पर वाटरमेलन हो गया, पपाया हो गया, इनमें बहुत सारी सीड्स होती हैं. Other like papaya and watermelon have many seeds inside them. So next page. Flower help the plant to reproduce. Plants को reproduce करने में plant क्या करते हैं? Help करते हैं. Seeds are protected inside the fruit. Seeds कहाँ पे protected होते हैं? Fruit के अंदर. When the seed gets water, air and warmth, it grows into a new plant. जब seed को गर्मी मिल जाती है, warmth मिल जाती है, air भी मिल जाती है, water भी मिल जाती है, वो एक new plant में grow कर देती है. Other uses of a flower. Here are some other uses of a flower. Flower को हम कहाँ का यूज करते हैं? फूड में, फ्रेगनेंस में, स्पाइसेस में, डेकोरेशन में, बहुत जगह हम फ्लावर्स का यूज करते हैं. फर्स्ट, फ्रेगनेंस. हाउ वी मेक फ्रेगनेंस? Flowers of some plants like rose and jasmine are used to make perfumes. जो फ्लावर्स होते हैं, जैस्मिन हो गया, रोज हो गया, लिली हो गया, वो क्या हेल्प होते हैं? उनका परफ्यूम्स बनाने में हेल्प होती है. Are used for making perfume. Food. Flower of certain plants are cooked and eaten. For example, cauliflower, broccoli and banana. जो बनाना होता है, कॉलीफ्लावर हो गया, ब्रोकली हो गया, these are the flowers of a plant. तो इनको हम क्या करते हैं? कुक भी करते हैं और खाते भी हैं. Now spices. Spices like turmeric, chili, clove, saffron, etc. are obtained from the plants. जो spices हो गए, जैसे चिली हो गई, टर्मरिक हो गया, वो कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? फ्लावर से ऑब्टेन होते हैं. फ्रॉम द प्लांट्स. Saffron or kesar is obtained from crocus flower and cloves are dried flower buds. जो सैफरन और केसर है वो कहाँ से हमें मिलता है? क्रोकस फ्लावर से मिलता है. और क्लोव्स कहाँ होती है? आर द ड्राइड फ्लावर लीव्स. वो ड्राइड फ्लावर बड्स होती है. जो क्लोव्स होती है वो बड्स से सूखी हुई होती है. नाउ डेकोरेशन में हम कैसे यूज करते हैं? फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन ड्यूरिंग फेस्टिवल, फंक्शंस एंड वेडिंग्स. आपने देखा वेडिंग्स में, फंक्शन में, ऑन दिवाली एंड वेडिंग्स you decorate your houses with flowers. We make bouquet, garlands and rangolis with flower. हम garlands भी होते हैं, bouquets भी, और rangolis भी हम किससे बनाते हैं? Flower से बनाते हैं. Now here are some important points of this chapter. For what we have to remember. The two main part of the plant are the roots and the shoots. जो two main part होते हैं plant के, वो कौन से होते हैं? Roots होते हैं, shoots होते हैं. Roots are above under the ground and shoots are above the ground.
The roots remain underground and the shoots grows above the ground. The root fixes the plant in soil, takes in water and minerals from the soil and binds the soil. It stores food in some plants. जो रूट्स होती है वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं, अच्छे से प्लांट को मजबूत बना देती है. जब वो फैल जाता है उसके अंदर अच्छे से प्लांट, तो वो ग्रो करता है अच्छे से, बहुत ज़्यादा टाइट, मतलब उसको फिर कोई हार्म नहीं हो सकता. और वो क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स को सोक करती है रूट्स सॉइल से, जो डिफरेंट बॉडी पार्ट में फ्लावर के जाता है. Roots are of two kinds, taproot and fibrous root. As I told you, there are two kinds of roots, taproot and fibrous root. The stem supports the plant and bears leaves, buds, flower and fruits. जो स्टेम होती है वो किसको सपोर्ट करती है, प्लांट को सपोर्ट करती है. उसमें क्या क्या होता है, फ्रूट होते हैं, स्टेम होती है, बड्स होती हैं, फ्लावर होता है, एंड इट टेक्स वाटर एंड फूड टू. और वो क्या, स्टेम क्या लेके जाती है, डिफरेंट बॉडी पार्ट में वाटर and food. The green leaves makes food using sunlight, water, minerals and carbon dioxide with chlorophyll by the process plant to breathe. जो green leaves होती है वो क्या करती है, वो फूड बनाती है किसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से, और एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल विद कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो. द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. एंड वो क्या होता है, प्लांट्स हेल्प करता है उसको ब्रीथ करने में हेल्प करता है. फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स. फ्लावर क्या होता है, एक फ्रूट में ग्रो कर देता है. जब पहले तो फ्लावर होगा फिर वो धीरे धीरे फ्रूट बन जाता है. फ्रूट्स प्रोटेक्ट द सीड हेल्प द प्लांट टू रिप्रोड्यूस. फ्रूट्स क्या करते हैं, सीड को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, और सीड्स क्या हेल्प करते हैं उसको रिप्रोड्यूस करने में. अब सीड स्टार्ट्स ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट व्हेन इट गेट्स वाटर, एयर एंड वार्मथ. सीड किस में ग्रो करने लगती है, न्यू प्लांट में ग्रो करने लगती है जब उसे वाटर, मिनरल्स एंड एयर एक सही क्वांटिटी में मिल जाती है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन. आई होप यू ऑल लाइक द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.